Welcome dear students. I am Sumit. Today we'll be doing about the third chapter, human reproduction. In today's lecture we'll be talking about the process of menstrual cycle which takes place in the females of human. It is a 28 to 29 day cycle, and in the previous lecture we read about the concept of oogenesis. As we know that during oogenesis, what happens, the primordial germ cell which is present in the ovary divides by continued mitosis to form oogonium. Some of the oogonium grow in size to form the primary oocyte, which is diploid in nature. And when the primary oocyte is surrounded by some specific cells called granulosa cells, they are called the primary follicle cells. They are called the primary follicle. As we know that from the primary oocyte, secondary oocyte is formed, and the secondary oocyte are the resultant of the first meiotic division, or the meiosis first, or the reduction division. But the process of meiosis first is ceased or arrested in the leptotene stage of prophase first of meiosis first for a very long time. Now, as we know that the primary follicle consists of a single primary oocyte which is surrounded by many granulosa cells. Then secondary follicle form, and after this the tertiary follicle may also be formed. During the formation of the tertiary follicle, the primary oocyte converted into secondary oocyte. It means after the completion of first meiosis division, the secondary oocyte, which is haploid in nature, may formed. And finally, a mature follicle, which is known as Graafian follicle, is formed, in which the secondary oocyte is present, and the secondary oocyte is also surrounded by a layer called zona pellucida. The secondary oocyte is haploid in number. The further development, the further division, the division is meiosis second, which is completed in 4 subphases: prophase second, metaphase second, and anaphase second, and telophase second, is also ceased or arrested in the metaphase second phase. The further development, the further division takes place only after the sperm is fused with the secondary oocyte, and the centriole of the sperm help the cell to divide and form the ovum or egg. ये प्रोसेस को हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसको समझाया था, और ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, इसमें जो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी फॉलिकुलर फेज में ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होती हैं. सो लेट वी स्टार्ट today's topic, and the topic is menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये शुरू होती है एक पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन से. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, और उसके बाद पहले मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो टाइम स्पान होता है, उसमें जो भी प्रोसीजर्स होती हैं वो सब मिलकर हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल.
है ना। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, और इसे हम नाम दे देते हैं मेनार्क। मेनार्च हम इसको नाम दे देते हैं। और ये फाइनली यहाँ से ये आगे को चलती रहेगी मोनार्च तक। मोनार्च में ये फाइनली जो है स्टॉप हो जाएगी। मेनार्च से स्टार्ट होगी और मोनार्च में स्टॉप हो जाएगी। मोनार्च स्टेज आएगी अराउंड 50 और 55 ईयर्स में, और मेनार्क स्टेज आ जाएगी फर्स्ट जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 12 और 13 इन फीमेल। इस प्रोसेस को हम जरा डिटेलिंग में समझते हैं कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। सो जरा इसको समझिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हार्मोनल चेंज होते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, हार्मोनल चेंज को अगर हम पढ़ते हैं इसकी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या हार्मोनल चेंज होते हैं। hypothalamus gland which is present in our brain secretes a hormone which is known as GnRH। इसके बारे में हमने जब हम स्पर्म के बारे में बता रहे थे, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा कहाँ कहाँ से ये रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन के जो ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन, इस डाइएन्सेफेलॉन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस से सेक्रेट हो गया GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और वहाँ से ये ट्रैवल करके पहुँच जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से ये इसको इनिशिएट कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रमोट कर देता है, और इंड्यूस इसके प्रमोशन से पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करती है, दो हार्मोन सेक्रेट करती है। वन इज कॉल्ड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन and second one is called FSH follicular stimulating hormone. Now the name itself suggests what is the name, follicular stimulating hormone, and the cells which is present in ovary is called follicular cells. So these follicular stimulating hormones help in the formation of or the development of follicles, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन इसी FSH की मदद से होता है, फॉलिकल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और फाइनली ये फॉलिकल सेल जो है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, ये कुछ अपने हार्मोन्स भी सेक्रेट करती हैं, एंड द हार्मोन नेम इज एस्ट्रोजन। सेकेंड वन इज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प्स in the process of ovulation. Are you know what is ovulation? मैंने बताया था पहले भी, ovulation is the process of releasing of ovule from the follicle cells. इस फॉलिकुलर सेल्स से जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है, ओव्यूल जब इस फॉलिकुलर सेल्स को डिग्रेड करके डैमेज करके बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। ओके ना। सो अगर हम इसी प्रोसीजर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसीजर को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स का इसमें अपना पर्टिकुलर रोल है। और ये जो प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहले ही बोल दिया है 28 to 29 डे की ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 28 और 29 डेज लग जाते हैं। हालांकि कई बार कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो फेज की टाइमिंग है वो समवट इम्बैलेंस भी हो जाती है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। दीज फेजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज, नंबर सेकंड वन इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड वन इज ओव्यूलेशन फेज, एंड लास्ट वन इज ल्यूटियल फेज। 4 बेसिक फेजेस हैं। इनिशिएट होगी मेंस्ट्रुअल फेज से और ल्यूटियल फेज पे खत्म होगी, और ल्यूटियल फेज के बाद फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए जरा क्या कंडीशन हुई। लेट अस सपोज दिस वन इज द ओवरी। ये दो जगह पे ये काम हो रही है भाई। देखिएगा, एक तो ये काम कर रही है ओवरी पे और एक ये काम कर रही है यूट्रस पे। ओवरी पे देखिए, दिस वन इज द
प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स, जो हमने पहले बताया था, देखा था ना, देयर इज अ प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स विच इज सराउंडेड बाय सम ग्रेनुलोसा cells. Now this one is secondary follicular cells, this one is the tertiary follicular cells, and this one is the Graafian follicle. डिग्रेड हो चुकी है Graafian और मैच्योर follicular cells. यही तो हम देख रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन Graafian follicle, देन ओव्यूल जो है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है. सो कंडीशन क्या हुई, पहले तो ये एक प्राइमरी oocyte थी, ये जो सेंटर में आपको दिख रही है ये क्या है, प्राइमरी oocyte, और ये सराउंडेड बाय सम ग्रेनुलोसा सेल. द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल जो हैं, इसके नंबर, ग्रेनुलोसा सेल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अंदर प्राइमरी oocyte ही है, मियोसिस फर्स्ट चल रही है, और आगे चलकर फिर ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्सरी फॉलिकल बना देगी, एक स्पेस बन जाएगा एंट्रम, और इसके बाद ये जब डैमेज हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, ग्रेफियन फॉलिकल डैमेज होगा, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन. सो इसमें कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले इनिशियल फेज आएगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं मेनेस्ट्रुअल फेज. और मेनेस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, मेनेस्ट्रुअल फेज में मेनेस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. ये ब्लीडिंग फेज है जो 2 to 5 डेज तक चलती है, और इस 2 to 5 डेज में यहाँ पे कंडीशन में ये 2 to 5 डेज में पर्टिकुलर ब्लीडिंग होगी. इसके बाद फॉलिकुलर फेज आ जाएगी, 5 डेज से अराउंड 14 डेज के आसपास तक, 13-14 डेज तक फॉलिकुलर फेज आएगी. इन फॉलिकुलर फेज में ये जो फॉलिकल्स हैं ये प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन या मैच्योर फॉलिकल तक के फॉर्मेशन का प्रोसीजर होगी. इसके बाद तीसरी फेज जो आ जाएगी जिसे हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन फेज. ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये फॉलिकुलर सेल डैमेज होगी, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फॉलिकल से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद की जो फर्दर फेज होती है उसे हम बोल देते हैं ल्यूटियल फेज. और जैसे ही ल्यूटियल फेज कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मेनेस्ट्रुअल फेज जो है ये स्टार्ट हो जाएगी. क्या शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट मेनेस्ट्रुअल फेज. अच्छा जी, अब इस प्रोसीजर को अगर हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो कंडीशन क्या हुई, जरा आप इसको समझेंगे. एक तरफ यहाँ ये हार्मोनल सेक्रेशन भी हो रहा है, देखिए कंडीशन क्या हुई है. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स है, प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल है. जैसे जैसे ये आगे को बढ़ेगी, ये फर्स्ट डे से शुरू हुआ है, यहाँ से फर्स्ट डे शुरू हो गया है मेनेस्ट्रुअल साइकिल का, और ये यहाँ पे जहाँ पे हम ये पीक दिखा रहे हैं, जहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, ये 14th डे है. तो 14 डे जनरली ये हाफ में आ रहा है, मिडिल में 14 डे इधर और 14 डे इधर, 28 डेज की. अब कंडीशन क्या हुई, ये फॉलिकल जो ये यहाँ फॉलिकुलर चेंज हो रहा है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocyte, जो ये सॉरी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल जो बन रही है, इसमें हेल्प करेगा यही हार्मोन जो हमने भी आपको पहले भी बताया था, FSH. कहाँ से सेक्रेट होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. और हमने ये भी देखा ये दो काम करता है, एक तो FSH सेक्रेट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड के थ्रू आ रहा है ओवरी में, और ओवरी में ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है. और जब ये फॉलिकल बन जाती है तो फॉलिकल कुछ अपने हार्मोन भी सेक्रेट करती है जिसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोजन. सो देयर आर 2 मेन हार्मोन्स देयर. वन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, while the another hormone is estrogen which is secreted by the ovary itself. ये ओवरी की फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो इस एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करती हैं. तो दो टाइप के हैं, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया ओवरी पे काम कर रहा है, और ये ओवरी पे खुद ही सेल्फ जनरेटेड हार्मोन है. सो यही बात यहाँ पे भी हुई है. अच्छा, ये हम देख लेते हैं, देखिए जरा क्या है, ये oocyte है, इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स थी. ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं ये सेक्रेट करती हैं एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन है. ठीक है. 14th डे के बाद ये एस्ट्रोजन 14th डे तक ये जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, ज़रा सोचिएगा मेरी बात को, जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इन्हांस करती जाएंगी. पहले ग्रेनुलोसा सेल्स कम थी,
फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ा और ज़्यादा हुई। तो मैच्योर फॉलिकल बनने तक या ग्रेफियन फॉलिकल बनने तक कंटिन्यूसली ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और ग्रेनुलोसा सेल्स ही वो सेल्स हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करती हैं, है ना। द एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। सो अगर if the number of granulosa cell is higher, it means the secretion of estrogen hormone is, or the level of estrogen hormone is also become high. तो जैसे जैसे फॉलिक्यूलर सेल्स मैच्योर होती चली जाती हैं, एस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही फाइनली जब ये फॉलिकुलर सेल्स डैमेज होती हैं, सेकेंडरी oocyte को अपने से बाहर निकालती हैं, ओव्यूल को बाहर निकालती हैं, तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं, ये जो रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल, देखो ये ओव्यूल तो बाहर निकल गया, सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, ये जो रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स हैं या ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक दूसरा हार्मोन सेक्रेट करता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट एन अनदर हार्मोन विच इज नोन एज प्रोजेस्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है ये यूट्रस के फर्दर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये अब मेन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करने लग गई? प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन साथ में कुछ अमाउंट में ये एस्ट्रोजन भी कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स जो हैं वो सेक्रेट करती हैं। सो वन थिंग you have to know that the corpus luteum is basically formed from the remaining granulosa cells. ठीक। फाइनली धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डैमेज होने लग जाता है आगे की डेट में, और अमाउंट ऑफ जो एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्ट्रॉन है जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम जरा देखते हैं क्या कंडीशन थी, इसी को अगर हम इसमें देखते हैं। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने यहाँ पे ये दो मार्क बनाए हैं, एक रेड मार्क है और एक जो है ये ब्लू मार्क है। ये ब्लू मार्क जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर रहा है, और ये जो रेड मार्क है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहा है। तो देखिए शुरुआत में क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट होना है और फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए हमें एफएसएच की ज़रूरत पड़ेगी, तो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई है। धीरे धीरे फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, एफएसएच लेवल कम होता चला जाता है, एफएसएच का यूज़ कम होते चले जाता है। डेवलपमेंट के बाद एक बार ये पीक पे आता है और फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर ये नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होना शुरू हो गया। फिर से आपको नेक्स्ट, क्योंकि मेनेस्ट्रुअल एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक बार खत्म होगी फिर से शुरू होगी, और फिर धीरे धीरे इसका अमाउंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है इन द ल्यूटियल फेज। अगर इसी के कंपैरेटिवली हम दूसरे हार्मोन को देखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करता है। एलएच देखिए, ठीक ओव्यूलेशन, जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा ये 14th डे पे होगा, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल पहले लो था, धीरे धीरे आगे बढ़ा, एंड एट द मिड स्टेज एट द 14 डे ये एलएच का लेवल अपने पीक पे आ जाएगा क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया। और ये हेल्प किस में करता है? पहले ही बोला है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ओव्यूल के बाहर आने पे हेल्प करता है। और जैसे ही इसका प्रोसीजर खत्म हो गया फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम ओवरी, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओवरी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आए हैं हार्मोन उनका रेशियो है। एक वो हार्मोन है जो ओवरी ने खुद बनाए हैं, हमने देखा था कौन से, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्ट्रॉन। तो जरा इसके लेवल को हम देख लेते हैं। एक एस्ट्रोजन का लेवल है, एक प्रोजेस्ट्रॉन। इनिशियली द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई, एस्ट्रोजन का लेवल ठीक है क्योंकि एस्ट्रोजन ये फॉलिकुलर सेल्स सॉरी ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन को सेक्रेट कर रही हैं, ठीक है। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन फेज, जो ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, तो इससे 24 आवर बिफोर ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये अपनी पीक पे होता है। यानी कि आप सोचिए 14th डे पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो अराउंड 13th डे पे। और इसकी वजह से, इस एस्ट्रोजन की वजह से
ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसने हेल्प किया इस ओव्यूलेशन में, और ओव्यूलेशन हुआ तो उसके बाद क्योंकि ये ग्रेनुलोसा सेल्स डैमेज हो गई थी ओव्यूलेशन के बाद, तो इसलिए इसका लेवल जो है ये डिक्लाइन करने लग गया। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि ये सेक्रेट होता है बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स, और ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये कम हो गई, डैमेज हो गई, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो गई थी कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम में डैमेज हुई, तो इस वजह से इसका अमाउंट जो है ये पीक से नीचे की तरफ आ गया, डिग्रेड हो गया। देन अगेन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन फिर से बनाने लग जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन तो बनाता ही है, साथ में एस्ट्रोजन भी बनाता है, तो इसलिए फिर से इसका लेवल थोड़ा हाई हो गया। सेम इसी तरीके से अगर आप प्रोजेस्ट्रॉन को देखेंगे तो इनिशियली देयर इज़ नो प्रोजेस्ट्रॉन, ये हमने दिखा है, बहुत कम लेवल होगा इसका, बहुत लिमिटेड है प्रोजेस्ट्रॉन, बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से बनेगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद एक्टिवेट होगी। तो इनिशियली प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बहुत ही लो होता है, बट आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एकदम से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी और प्रोजेस्ट्रॉन बनाएगी, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं, यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है भाई? यूट्रस में जो यूट्रस है, इसमें यूट्रीन्स जो हैं, इसमें एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो ब्लड जो होती हैं, जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो उसमें इसी का रीज़न है, इसी का बेसिक रोल है। क्या कंडीशन होगी भाई? इनिशियली जब मेंस्ट्रुअल फेज होगा 2 to 5 days में, तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रीन में जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक करेगी, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज कर जाएंगी। इस ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से, यहाँ ये सपोज ब्लड वेसल्स थी, क्योंकि ये ब्लड वेसल डैमेज हो गई, इनके डैमेज होने से ब्लीडिंग होगी। क्या होने शुरू हो जाएगी? ब्लीडिंग। फिर ये कौन सी फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। फिर फॉलिकुलर फेज में धीरे धीरे, इसको हम एक और नाम देते हैं फॉलिकुलर फेज। द अनदर नेम ऑफ फॉलिकुलर फेज इज प्रोलीफरेशन फेज। प्रोलीफरेट करती हैं, यानी कि जो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई थी, या जो ये फॉलिकुलर या जो ये ब्लड वेसल्स इसमें जो ब्रेक हो गई थी, ये दोबारा फॉर्म होनी शुरू होती हैं। तो ये दोबारा फॉर्म होनी यहाँ शुरू हो जाएंगी, तो इस फेज में देयर इज नो ब्लीडिंग। इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज में ये ब्लड वेसल्स जो है अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगी, फिर से पूरी ब्लड वेसल्स बन जाएंगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? तो ये हमारी यूट्रस में जो कंडीशन हो रही थी वो है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं क्या हुआ था। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ? प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुई, 28 to 29 डेज की साइकिल है ना? और सबसे पहले 4 फेज होती हैं। पहली फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसमें जो इनिशियल 3 to 5 डेज होती है, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो या ब्लीडिंग होती है। फिर फॉलिकुलर फेज आती है, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। पहले एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज में ब्रेक हो गई थी, और जो फॉलिकुलर फेज या प्रोलीफरेशन फेज होती है, इसमें रीजनरेट होती है। ठीक है, और इसमें कुछ हार्मोन्स जो ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेट होते हैं, जिनमें हम LH, FSH और एस्ट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आती है, थर्ड फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है, 14th डे में होती है, और इसमें ओवम रिलीज हो जाता है। और फाइनली ल्यूटियल फेज आती है, जो आफ्टर 14 डेज होती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मली तो 28 to 29 डेज़ की होती है, लेकिन ये हर बार 28 to 29 डेज़ की होगी ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ये साइकिल की डेज़ जो है, कभी ये जल्दी हो जाती है तो 24, 25, 26 डेज़ में ही पूरी हो जाती है, और कभी ये 35 या उससे ज़्यादा दिन भी लगा देती है जब कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो एक बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि 14 डेज़ के बाद वाला जो फेज़ हमने कहा, ये वाला फेज, इसकी टाइमिंग हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि इसकी टाइमिंग जो है 14 डेज ये फिक्स है। समझ रहे हैं? ये जो 14 डेज से बाद वाले हैं, इसकी टाइमिंग में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये 14 डेज की या 14 to 15 डेज की होगी ही होगी। इसकी टाइमिंग, इसके डेज कम या ज़्यादा नहीं होंगे। जो भी चेंज आएगा वो इससे पहले आएगा, इस वाली फेज में।
मीन्स अगर सपोज 26 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो थी वो 26 डेज चली, तो आप सोचिए 14 डेज तो ये फिक्स है, तो यहाँ के डेज जो 14 होने चाहिए थे ये 12 हो जाएंगे। इवन अगर 35 डेज हो गई तो ये 14 तो फिक्स रहेंगे, ये 21 डेज हो जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है 14 डे, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte जो या ओव्यूल जो इस ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, इसकी लाइफ जो होती है वो अराउंड 24 टू 48 आवर्स होती है। यानी कि अगर ये 24 से 48 आवर्स तक रहेगा तो ये लिविंग रहेगा और उसके बाद ये डैमेज हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। 14, 15, 16 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल के, वो बेस्ट टाइम होता है फर्टिलाइजेशन में। इससे पहले और इसके बाद, इससे पहले ये फॉर्म ही नहीं हुआ था, फॉर्म हुआ भी था तो ये बाहर ही नहीं आया था, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगेन अगर हम 17 टू 18 या 19 डेज में देखेंगे तो ये डैमेज हो चुका होगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।